A very good evening to everyone, and thank you for taking out the time to join this webinar today. So in the audience today, we have a mix of the crowd. So we have a few clients who are already using Sanchay CRM to manage their business. And we also have a few people who would want to use Sanchay CRM in near future. So I welcome you all, and I deeply hope that this webinar proves to be of benefit to you all. So let us take a look at the agenda for today's webinar. So first, I'll just give you a brief about what Sanchay CRM is. Next, we'll discuss why portfolio review meetings are important. Third, Haya will give you an overview of how you can manage portfolio review meetings in Sanchay CRM. We'll be discussing the pain points that most of our clients go through and the solutions that Sanchay CRM provides you. And then Harshada, my colleague, will be giving you a live demo on how portfolio reviews can be set up in Sanchay CRM. And after that, we'll jump on to the question and answer session. So अगर इस सेशन के दौरान आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में we'll take up those questions. So I'll just give you a very short brief on what Sanchay CRM is actually, what it is. Okay. Sanchay CRM, it is a system that is designed to maintain the lead life cycle. Okay, you are also able to maintain the details of your existing clients, which can be further used to enhance your relationship with them. Then apart from that, in Sanchay CRM, you can also import your FD and bonds data and the insurance data in case you need reminders about the upcoming renewal dates, maturity dates, and other important reminders, however you need them. Also, through Sanchay CRM, you will be able to track any financial or non-financial tasks that you have to perform for your clients. Then when we come to the star features that we have in Sanchay CRM, the first is portfolio review meetings management. Okay, so आज का पूरा जो webinar है, it is based on portfolio review meetings only. So we'll see that in the later stage of this webinar. Next, we have the referral management feature. So आपके पास जो भी referrals आते हैं from your existing clients, or they can also come from any other source. Okay, वो आप Sanchay CRM में maintain कर सकते हैं. And apart from that, you can also get insights on which existing client is giving you the maximum number of leads, maximum number of referrals. And also आपको ये भी पता चल सकता है कि ऐसे कौन से clients हैं जिनमें potential है to refer, but they haven't been approached from our end. So there are many analytical views which you can get through Sanchay CRM. Last but not the least, the most important feature is that of the reports. Okay, इतना सारा डेटा हम संचय सीआरएम में लेके आते हैं और इस डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है बिकॉज ये आपको एक पावर देगा टू गेट एनालिटिकल रिपोर्ट्स लाइक आरएम परफॉर्मेंस, daily activity reports and business forecast and many other similar reports which might be required by the business. So before we get into what exactly portfolio review, how we can manage it in Sanchay CRM, let us like set the context. Okay. So first let us talk about the cost difference between acquiring a new client and managing an existing one. So अभी जो financial services का जो business है, in that the cost proportion of acquiring a new client to maintaining an existing one is 7:1. अगर मैं बहुत सिंपल एक भाषा में बोलूंगी तो अगर आपको एक नया क्लाइंट एक्वायर करने में अगर 700 रुपीज लग रहे हैं, आपको उसी टाइम पे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मेंटेन करने में सिर्फ 100 रुपीज लगते हैं. ओके अगर हम लॉजिकली सोचेंगे सो आपका कितना सारा एफर्ट्स जाता है टुवर्ड्स एक्वायरिंग अ न्यू क्लाइंट. आप मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं, कॉल्स होते हैं, मल्टीपल मीटिंग शेड्यूल होती है, ऑन बोर्डिंग, केवाईसी, डॉक्यूमेंटेशन एंड अ लॉट ऑफ फॉलोअप्स. आप इसे आप कंपेयर करिए विथ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट. आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ आपका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ट है, राइट? वो आपको ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ट है. अभी इस टाइम पे आपको उनके साथ सिर्फ एक चीज करना रहता है, दैट इज कांस्टेंट फॉलो अप,
right? And portfolio review meetings are the lowest cost, highest impact activity that you can do to protect and grow your business. अभी हम में से ना कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमको बिजनेस ग्रो कर सिर्फ हम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन करेंगे, सो ओनली दैट इज गोइंग टू ग्रो आवर बिजनेस. दैट इज पार्शियली ट्रू बट नॉट कंप्लीटली ट्रू. क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं ना, दे आर योर बिगेस्ट रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी. क्योंकि आप इमेजिन करिए कि आप एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, अगर उनके साथ आप एक पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, तो उसका आउटकम्स क्या क्या हो सकता है. आपका एक आउटकम ये हो सकता है कि आपको एडिशनल एसआईपीज वो क्लाइंट आपके साथ करेंगे, या फिर हमारे पास लमसम इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स हो सकते हैं, एंड द बेस्ट केस सिनेरियोज कि आपको रेफरल्स मिल सकते हैं of their families or friends. And if not any of them, you are investing in building your relationship, in enhancing your relationship with your existing client. एक और जो चीज आती है वो आती है हमारी ट्रस्ट एडवांटेज. ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, उनको एज ऑफ नाउ आपके पास आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है, क्योंकि वो आपके साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो काफी टाइम से व्हेन दे आर विथ यू, दे बिकम वेरी लेस प्राइस सेंसिटिव, they are less likely to churn, and they are more likely to consolidate their assets with you. क्योंकि हमें इस टाइम पे जब आप वो आपके साथ बहुत टाइम से रहते हैं और आप उनके साथ कांस्टेंट एंगेजमेंट करते हैं, सो द क्लाइंट्स दे फील गाइडेड, और उनको ऐसा लगता है दैट वी आर मॉनिटर्ड, हमारा जो एयूएम है दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड, एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो प्लान्स है उस पे काम उनको वैल्यूड एज अ वैल्यू, दे फील दैट दे आर बीइंग वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन. सो इन शॉर्ट, जो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स होती है वो सिर्फ ना फाइनेंशियल डिस्कशंस के लिए नहीं है, वो एक बिहेवियर मैनेजमेंट टूल है जो आपके जो क्लाइंट है उनकी जो लॉयल्टी है वो और डीपन करती है, एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर क्लाइंट्स. Coming to the next slide. So अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पुल मार्केट एंड द पुश मार्केट. ओके, सो अभी थोड़े टाइम पहले तक ना मार्केट ऐसा था, एक मतलब एक पुल मार्केट था. उसमें क्या था, क्लाइंट्स जो है वो एडवाइजर्स से इंफॉर्मेशन पुल करते थे, राइट? वो आपको बहुत चीजों के लिए कॉल करते थे. फॉर एग्जाम्पल, दे यूज टू कॉल यू फॉर मार्केट अपडेट्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज, कभी रिडेम्पशन करना है, परचेस करना है, पोर्टफोलियो रिगार्डिंग उनको कुछ भी क्वेश्चंस होता था तो क्लाइंट सामने से आते थे और हमारे एडवाइजर्स के पास दे यूज टू कम्युनिकेट. क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी और कॉम्पिटिटर्स भी हमारे काफी लिमिटेड थे. बट उस एनवायरमेंट में क्या था कि इवन इफ अगर आप प्रोएक्टिवली अपने क्लाइंट से ना कम्युनिकेट नहीं करते थे, स्टिल वो खुद आपसे आपके पास आते थे, आपसे कम्युनिकेट करते थे, एंड देयर वाज लाइक अ नेचुरल बॉन्ड दैट वाज बिल्ट. बट अभी का जो पिक्चर है दैट इज एंटायरली डिफरेंट. राइट नाउ वी आर इन द पुश मार्केट. अभी के टाइम पे क्लाइंट्स हैव मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है, दे हैव डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स, रोबो एडवाइजर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूब चैनल्स, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस. तो अभी उनको ये नहीं फील होता है कि मैं हर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे एडवाइजर को कॉल करूं. ठीक है, क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन एट देयर फिंगर टिप्स इट इज अवेलेबल. So in this environment, it is very important that we engage in push engagement. ठीक है, we have to proactively reach out, schedule reviews, educate clients, and show them that they are valued continuously. क्योंकि अगर हम अभी उनको एंगेज नहीं करेंगे ना, तो मार्केट में there are many people who are ready to engage them. So we don't want to give them an opportunity to take over our clients. एज ऑफ नाउ ना हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इट इज टू कैप्चर योर क्लाइंट्स अटेंशन. क्योंकि अभी के टाइम क्या है ना, दे आर बीइंग बम्बार्डेड विथ नोटिफिकेशंस, मार्केट न्यूज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज, और हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो उनके अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं. एंड अगर इस टाइम पे इफ यू आर नॉट बीइंग हर्ड एंड इफ यू आर नॉट विजिबल टू देम, यू आर आउट ऑफ द माइंड. आपने वो कहावत सुनी होगी कि आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड. मतलब हमें कॉन्स्टेंटली उनके आसपास रहना ही है, सो दैट दे आर रिमाइंडेड दैट वी आर देयर फॉर देम कॉन्स्टेंटली. सो इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो रिव्यूज जो है, दे आर अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टे रिलेवेंट इन दिस अटेंशन इकोनॉमी. क्योंकि क्या होता है, जो पोर्टफोलियो रिव्यूज है ना, दीज आर वेरी प्रोफेशनल रीजन
to connect with your clients, to update them, and also reinforce your role as an advisor with them. Now, your second responsibility is to use portfolio review meetings, is to use your CRM as an engagement engine. ठीक है, आप इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने सारे रिव्यूज को ऐसे स्ट्रक्चर करिए दैट आपको मल्टीपल टच पॉइंट्स मिलते हैं अपने क्लाइंट्स को एंगेज रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग दीज मीटिंग्स यू कैन रीअश्योर योर क्लाइंट्स दैट यू आर ऑलवेज देयर विद देम, कि उनका AUM जो है इट इज बीइंग मॉनिटर्ड. मार्केट की वजह से जो भी वॉलेटिलिटी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली उनके पोर्टफोलियोज अलाइन हो रहे हैं. Also, it is very important to educate them about the market and products and also align their portfolios accordingly. और इस दौरान पे we can also find out opportunities to upsell and cross sell. And apart from all this, हम हमारा relationship भी हमें strengthen करना रहता है. So instead of random calls and we need to create predictable and scheduled engagement. So this transforms your practice from reactive servicing to proactive advisory, and that is which is in today's economy. Now let us discuss why skipping portfolio review meetings is more dangerous than you think. Okay, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी कोई क्लाइंट अगर ज्यादा ना हमसे कॉन्वर्जेशन नहीं करते हैं, ज्यादा हमसे एंगेज नहीं करते हैं, सो हमको क्या लगता है, हाँ कि अभी मार्केट स्टेबल है, सो इट इज फाइन, द क्लाइंट इज ऑल्सो देयर, दे माइट बी बिजी, सो लेट इज नॉट डिस्टर्ब देम. बट आजकल के टाइम में ना जो ये साइलेंस है ना, ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देती है. एंड आई विल टेल यू अबाउट द रिस्क्स जो इस साइलेंस के साथ आएंगे. सबसे पहला जो रिस्क है दैट इज द एसेट लीकेज रिस्क. तो अभी क्या होगा ना, ये जो साइलेंस इतना क्रिएट हो जाता है, इतना जो गैप क्रिएट हो जाता है, उसमें क्या होता है, क्लाइंट्स में रिडीम एंड दे मे शिफ्ट टू सम अदर एडवाइजर विदाउट टेलिंग यू, और हमको तभी पता चलेगा जब ये AUM ना हमारे अंडर से हट जाता है. द सेकेंड रिस्क इज मिस्ड रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज. अभी एक क्लाइंट के लाइफ साइकिल में इतने सारे उनके लाइफ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम हमारे प्लान्स या हम उनका पोर्टफोलियो कुछ रीअलाइन कर सकते हैं, बट अगर हम उनके साथ कांस्टेंट टच में नहीं है तो हमें पता ही नहीं है कि उनका अभी क्या है. मे बी ऐसा पॉसिबल है कि उनका नया जॉब लगा है, उनका कोई प्रमोशन हुआ है. सो देयर आर मेनी थिंग्स जिससे हमें पता ही नहीं है, एंड वी आर अनेबल टू पिच, एंड हमारी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, रेवेन्यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है. और जब एसेट लीकेज है और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है तो क्या होता है, इसका एग्रीगेट होके हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है, द थर्ड रिस्क इट कम्स इनटू पिक्चर, एंड दैट इज द क्लाइंट डिससैटिस्फैक्शन. क्योंकि क्लाइंट को अगर ऐसा लग रहा है ना कि द एडवाइजर दे आर नॉट वर्किंग और ये बहुत जेनेरिक में चल रहा है, मुझे पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा है, सो दे वोंट वांट टू स्टे विथ यू, because high value clients, they expect structured reviews, and if you don't give it to them, they feel unmanaged and they look to go somewhere else. Then going to the fourth risk, that is the behavioral mistakes, that is the compliance and documentation. अभी अगर आपके पास एक ट्रेल नहीं है कि हमारी ये हमने लास्ट पोर्टफोलियो में ये डिसाइड किया था, एंड लाइक दीज वर द पॉलिसीज दैट वर सजेस्टेड टू यू, अगर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मेरे पास ट्रेल ही नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है, सो दिस इट क्रिएट्स अ वेरी high regulatory risk. So you can also avoid it if you conduct regular portfolio review meetings. The fifth risk, that is the behavioral mistakes by clients. अभी क्या होगा, जब आपका कोई आपने किसी से अच्छे से रिलेशनशिप बनाया ही नहीं है, तो क्या होगा, जब मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट जैसे अप और डाउन होगा, आपका क्लाइंट का बिहेवियर भी, उनका रिएक्शन भी अप और डाउन ही रहेगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट उनके साथ बिल्ड नहीं हुआ है. तो अगर मार्केट खराब हो रहा है, then they are going to take emotional decisions which is going to affect their portfolio, and in long term it is also going to affect your AUM. So at the end we should understand that portfolio review meetings optional nahi hote hain, they are risk management for your business. So moving ahead, let us see how specifically we can manage portfolio review meetings through Sanchay CRM. So I invite Haya to take over the PowerPoint. Thanks, Mabel. Hello, everyone. Good evening. I hope I'm audible. Since our today's webinar is not just about the theory or features, it's about something you all deal with regularly in your practice. That is
पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स। पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग कोई कंसेप्ट नहीं है. All of you already know how important it is. But the real question today is not portfolio review meeting करना है या नहीं. The real challenge is execution and consistency. So let me ask you a few questions. बिना आंसर दिए सिर्फ सोचिए, आपके किस क्लाइंट के रिव्यूज ओवरड्यू है? मीन्स जिनके साथ आपके पोर्टफोलियो रिव्यूज तो प्लान हुए थे बट फॉर सम रीजंस कंडक्ट नहीं हुए. आपके किस क्लाइंट के रिव्यूज लास्ट 6 मंथ से या 1 ईयर से नहीं हुए हैं? और ऐसी कौन सी फैमिलीज है जिनके रिव्यू नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल्ड है? ऑनेस्टली आई डोंट वांट द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस, बट आई जस्ट वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. क्या आपको ये डेटा इमीडिएटली मिल रहा है कहीं से? ये पूरा एनालिसिस आप ले पा रहे हैं? आई होप एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स को इसके आंसर्स एक्सेल, डायरी या फिर अपने आरएम को पूछकर निकालने पड़ते हैं. एंड दैट इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड स्लीपिंग. सो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो डेटा है, वो हमें इमीडिएटली कहीं से क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग. आज एमएफडीज पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग तो करते हैं, बट ये रिव्यू मीटिंग जो है उसका प्लानिंग प्रॉपर नहीं है. सो देयर इज नो स्ट्रक्चर प्लानिंग ऑफ दैट. इसीलिए किसी क्लाइंट के रिव्यूज हो जाते हैं, किसी के डिले हो जाते हैं, तो किसी के कंप्लीटली मिस हो जाते हैं. नो क्लाइंट कैटेगराइजेशन बेस्ड फ्रीक्वेंसी. हर क्लाइंट जो है वो हमारा सेम नहीं होता. सुपर एचएनआई, एचएनआई, अपर मिडल, मिडल, सबके एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है. आज हमारे किसी भी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो रिव्यूज या तो क्वार्टरली हो जाते हैं या फिर साल में एक बार भी नहीं होते. मैक्सिमम एडवाइजर्स के पास क्लाइंट के प्रॉपर कैटेगराइजेशन तो है, बट उस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है. इसीलिए अगर मेरा क्लाइंट सुपर एचएनआई है या अपर मिडिल, या तो दोनों के ही रिव्यू मैं क्वार्टरली कर देती हूँ या फिर उनसे मैं टच ही नहीं कर पाती हूँ, रिजल्टिंग इन हाई वैल्यू क्लाइंट्स फील नेग्लेक्टेड एंड लो वैल्यू क्लाइंट्स अननेसेसरी टाइम ले जाते हैं. प्रायोरिटीज ही डिफाइन नहीं है. देयर इज नो रूल्स, नो कंसिस्टेंसी, नो प्रायोरिटीज. एक प्रॉब्लम ये भी है कि पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स आर आरएम डिपेंडेंट. मेजरली हमारे पोर्टफोलियो रिव्यूज जो होते हैं वो आरएम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इसीलिए अगर आरएम बिजी हो गया या लीव पर चला गया या अगर आरएम से फॉलोअप मिस हो गया तो रिव्यू भी डिले हो जाता है. देयर इज नो अलर्ट्स, नो एस्केलेशंस, देयर इज नो सिस्टम रिमाइंडर्स. आज हमारे एमएफडीज जो रिव्यूज करते हैं वो सिस्टम ड्रिवन नहीं है. पोर्टफोलियो रिव्यू का शेड्यूल या तो एक्सेल में होता है या डायरी या कैलेंडर में. और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पे मैनेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टवेल, फिनसिस या द टूल्स लाइक मिंट, तो वहां पर आप अपनी पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग डेट ऐड कर देते हैं. बट सिस्टम कुछ नहीं कहता कि आज किस क्लाइंट के साथ आपको रिव्यूज करने हैं. या तो आरएम को सब कुछ याद रखना पड़ता है या तो फिर उनको क्लाइंट के कॉल का वेट करना पड़ता है, रिजल्टिंग इन क्लाइंट्स एंगेजमेंट इनकंसिस्टेंट हो जाता है, रिव्यू साइकिल डिले हो जाती है और क्लाइंट को यह फील होता है कि पोर्टफोलियो रिव्यूज है वो प्रोएक्टिव नहीं है. देयर इज नो कंटिन्यूटी आफ्टर द रिव्यू. अब मान लीजिए कि आपकी मीटिंग्स हो भी गई, तो वो मीटिंग्स में क्या डिस्कशन हुआ था, क्या एक्शन पॉइंट डिसाइड हुए थे और नेक्स्ट रिव्यू कब है, ये सब की विजिबिलिटी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती है. सो अगर मैं कहूँ कि आरएम को अगर मीटिंग करनी है तो उनको या तो क्लाइंट को पूछना पड़ता है या तो कहीं से फाइंड आउट करना पड़ता है कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी और लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था. इन सिंपल वर्ड्स, आपकी हर पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग जीरो से प्लान्स होती है, क्योंकि आपके पास वो बैक डेटा अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल है तो उसको ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है. सो देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ योर रिव्यूज, नो विजिबिलिटी फॉर द ओनर्स एंड प्रिंसिपल. अगर आप प्रिंसिपल एडवाइजर्स है या बिजनेस ओनर है तो आपके पास कहीं पर भी ये विजिबिलिटी नहीं है कि आपके कितने क्लाइंट्स के रिव्यूज ओवरड्यू है, आपके किस आरएम ने कितने रिव्यूज कंप्लीट किए और आपकी ऐसी कितनी फैमिलीज है जो कि हाई रिस्क जोन में है. हियर हाई रिस्क जोन मींस कि ऐसे आपके क्लाइंट्स जो कि हाई वैल्यूड क्लाइंट्स तो है लेकिन उनके साथ आप टच में नहीं है, कनेक्शन पॉइंट्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सुपर एचएनआई क्लाइंट है लेकिन मेरा उनके साथ रिव्यू ही नहीं हुआ है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर.
सो ओवरऑल प्रॉब्लम ये नहीं है कि एडवाइजर्स पोर्टफोलियो रिव्यू करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस मैन्युअल है, पीपल डिपेंडेंट है एंड सिस्टम ड्रिवन नहीं है. So as we have clearly understood the challenges, let me now show you how Sanjay CRM changes the way portfolio review meetings are handled. So here are the things we are providing in Sanjay CRM. Client and family categorization. सबसे पहले संचय CRM में क्लाइंट्स को फैमिली लेवल पर कैटेगराइज किया जाता है, लाइक सुपर HNI, अपर मिडल, मिडल. एंड रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हर क्लाइंट सेम फ्रीक्वेंसी और सेम अटेंशन डिजर्व नहीं करता है और वो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता है. आपके सुपर HNI क्लाइंट्स या HNI क्लाइंट्स कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उनको मिडिल के जैसा या अपर मिडिल के जैसा ट्रीटमेंट मिले. सो एवरी क्लाइंट इज स्पेशल इन देयर ओन वे. रिव्यू फ्रीक्वेंसी डिफाइंड वंस. जैसे कि आप फैमिली कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद आरएम उनकी रिव्यू फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं. सिस्टम में आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. मान लीजिए कि सुपर HNI के साथ आप मंथली मिलेंगे, HNI के साथ क्वार्टरली, अपर मिडिल के साथ हाफ ईयरली एंड मिडिल के साथ ईयरली. एज पर योर बिजनेस फ्लो आप अपने क्लाइंट्स के कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं. वन टाइम सेटअप एट अ फैमिली लेवल. जैसे ही आपके ये दो कैटेगराइजेशन और फ्रीक्वेंसी सेटअप होता है, उसके बाद आरएम को फैमिली रिकॉर्ड के अंदर फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग डेट ऐड करनी होती है, एंड दैट्स इट. उसके बाद आरएम को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. सिस्टम विल गिव एवरीथिंग टू द आरएम्स. और आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि ये जो सेटअप है ये आपको सिर्फ वन टाइम करना है. उसके बाद आपका पोर्टफोलियो रिव्यू सेटअप सिस्टम में शेड्यूल हो जाता है. ऑटो क्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स. जैसे ही आरएम पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग फर्स्ट मीटिंग डेट ऐड करता है, वैसे ही सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी एक मीटिंग क्रिएट कर देता है. सो देयर इज नो नीड ऑफ द एक्सेल्स, डायरीज, कैलेंडर्स एंड ऑल्सो नो योर मैनुअल प्लानिंग्स. सिस्टम ड्रिवन रिमाइंडर्स. संचय सीआरएम में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग का पूरा जो सेटअप है वो सिस्टम ड्रिवन हो जाता है. आरएम को रिमाइंडर्स मिलते हैं. आरएम क्लियरली डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि आज उनको किनके साथ पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स करनी है, कैसे और कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स ओवरड्यू है, मींस जिनके फॉलोअप मिस हो गया है, सो दैट कैन रीप्लान इट. अपकमिंग रिव्यू मीटिंग्स किसकी है, सो दैट वो प्रोएक्टिवली उनको प्लान कर पाए. और अगर वो पोर्टफोलियो रिव्यू पहले भी हुए थे तो वो हिस्ट्री से वो देख पाए कि उनकी लास्ट मीटिंग डिस्कशन क्या हुआ. सो यहाँ पे आपको सिस्टम से रिमाइंडर्स प्रोवाइड होते हैं. स्मार्ट कंप्लीशन नेक्स्ट मीटिंग ऑटो शेड्यूल्ड. जैसे ही आरएम की मीटिंग कंप्लीट होती है, उस मीटिंग की डेट क्या थी, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था और क्या एक्शन पॉइंट डिसाइड हुए थे, अब उस क्लाइंट के साथ हमारी नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग कब है, ये सब कुछ आरएम सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं. जैसे ही आरएम पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग को कंप्लीट मार्क करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग क्रिएट कर देता है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे क्लाइंट्स की आज मैंने मीटिंग कंप्लीट की एंड फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, देन सिस्टम विल क्रिएट अ नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर द 3 months फ्रॉम नाउ. सेंट्रलाइज्ड रिव्यू हिस्ट्री. हर एक फैमिली रिकॉर्ड के अंदर आपको एक सिंपल और पूरा सेंट्रलाइज्ड हिस्ट्री मिल जाता है. आप क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर देख सकते हैं कि कितने पोर्टफोलियो रिव्यूज उस क्लाइंट के साथ हुए हैं, हर एक पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स में क्या डिस्कशंस हुए थे, सो दैट एक सिंगल स्क्रीन पे आपको अपने पोर्टफोलियो रिव्यूज की क्लाइंट वाइज हिस्ट्री प्रोवाइड हो जाती है. फुल विजिबिलिटी फॉर प्रिंसिपल एंड ओनर. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, अगर आप बिजनेस ओनर या प्रिंसिपल एडवाइजर्स हैं तो आपको एक सिंपल और क्लियर व्यू मिलता है कि कितने आरएम ने कितनी रिव्यू मीटिंग्स कंप्लीट की, आपके कितने क्लाइंट्स के रिव्यूज ओवरड्यूज है, किस क्लाइंट के रिव्यू मीटिंग्स नेक्स्ट मंथ शेड्यूल्ड है, और ऐसे आपकी कितनी फैमिलीज है जो हाई रिस्क जोन में है, विच आर अनटच, जिनके साथ कोई पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग हुआ ही नहीं है. So these are the core building solutions of the portfolio review meetings and the challenges you are facing currently. So हमने ये पूरा कंसेप्ट समझ लिया कि क्या challenges है और क्या संचय CRM में आप कैसे इसको स्मूथली मैनेज कर सकते हैं. So now it's a time to show you the demo.
to see how this works in a practice. So from our team, Harshada will give you the demo on it. So Harshada, over to you. Thank you, Haya ma'am. Hello everyone. So let's dive into the demo. So अभी तक आपने जो भी थियरी में सुना, हम अभी स्क्रीन पे वो प्रैक्टिकली देखते हैं. So let me just present my screen. To schedule a portfolio review meeting, you have to go to the family and organization module. यहाँ पे आपको आपके सारे जो फैमिली हेड्स है उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप जिससे हम हमारे पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और उसको सिस्टम थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कैटेगराइज माय फैमिली. द सेकेंड स्टेप इज टू सेट द मीटिंग फ्रीक्वेंसी. लाइक हया मैम ने बताया कि उनके साथ हमें मंथली फ्रीक्वेंसी में मीटिंग करनी है, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में मीटिंग करनी है, हाफ ईयरली करनी है, ईयरली करनी है एंड सो ऑन. थर्ड स्टेप ये रहेगा कि मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ फर्स्ट मीटिंग डेट सेट कर लूं जिससे सिस्टम मुझे ऑटो रिमाइंडर्स देता रहेगा. सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो कैटेगराइज कर लिए हैं और अभी कुछ मेरे फैमिली हेड्स हैं जिनका कैटेगराइजेशन पेंडिंग है. सो ये कैटेगराइज करने के लिए हमने सिस्टम में कुछ प्री डिफाइंड फिल्टर्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ AUM. सो आई विल जस्ट शो यू. आपको सिलेक्ट सेव सर्च में जाना है. यहाँ पे सुपर HNI टाइप करना है. सिस्टम में प्री बिल्ड ऑलरेडी फिल्टर्स है, आपको वो सिलेक्ट करना है. आई विल ऑल्सो शो यू कि हमने क्या कंडीशंस अप्लाई की है उसमें. अब यहाँ मैंने फर्स्ट कंडीशन ये रखा है कि बिकॉज मुझे मेरे कुछ टीम मेंबर्स का ही पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करना है तो मैंने वो टीम मेंबर्स सिलेक्ट कर लिए हैं एंड मैंने AUM सिलेक्ट कर लिया है कि इफ माय AUM इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 करोड़ देन मुझे पूरी लिस्ट मिल जानी चाहिए वो क्लाइंट्स की. सो आई विल जस्ट सर्च इट. सो एज आई एम गोइंग टू कैटेगराइज माई सुपर HNI क्लाइंट्स, यहाँ पे मुझे फिल्टर वाइज वो सारे HNI क्लाइंट्स की लिस्ट मिल गई. अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि मैं फर्स्ट ये क्लाइंट्स को कैटेगराइज कर लूँ. वो कैसे करना है, तो यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स, क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, क्लिक ऑन मास एक्शन. यहाँ पे आपको फैमिली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है. एज दिस आर माई सुपर HNI क्लाइंट्स, मैं यहाँ पे सुपर HNI टाइप कर लूंगी एंड यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर दूंगी कि ये क्लाइंट्स के साथ मुझे किस फ्रीक्वेंसी में मीटिंग करनी है. ये हम 2 स्टेप से कर सकते हैं. मैं इंडिविजुअली जाके भी ये मीटिंग फ्रीक्वेंसी अपडेट कर सकती हूँ एंड यहाँ से वन गो में भी कर सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ये मेरे सुपर HNI क्लाइंट्स हैं एंड इनके साथ मैं मंथली फ्रीक्वेंसी में मीटिंग करूंगी तो मैं वन गो में यही से इसको अपडेट कर दूंगी. सो आई विल जस्ट अपडेट इट. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सारे जितने भी सुपर HNI क्लाइंट्स थे सबकी कैटेगराइजेशन हो गया और उनके साथ मीटिंग फ्रीक्वेंसी भी सेट हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा वो फर्स्ट मीटिंग डेट शेड्यूल करना रहेगा. अब लेट से कोई भी आपके क्लाइंट का रिव्यू मीटिंग आपको शेड्यूल करना है. अभी मेरे एक क्लाइंट का रिव्यू मीटिंग मुझे शेड्यूल करना है जो है रोहन राजेश पटेल. मैं वो क्लाइंट को जस्ट एडिट करूंगी. यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होके आती है जैसे ये क्लाइंट का कैटेगरी क्या है और मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है. मुझे सिर्फ यहाँ पे आके फर्स्ट मीटिंग डेट शेड्यूल करना है एज पर द क्लाइंट अवेलेबिलिटी. सो मेरे क्लाइंट 9th को अवेलेबल है, मैं यहाँ पे 9 सिलेक्ट कर लूंगी एंड आई विल जस्ट सेव द रिकॉर्ड. वंस आई विल सेव द रिकॉर्ड, यहाँ पे मुझे क्लाइंट का डिटेल पेज ओपन मिल जाएगा. यहाँ पे आपको मीटिंग डिटेल्स में एक एनालिसिस या समरी मिल जाएगी कि ये क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने फर्स्ट मीटिंग कब शेड्यूल की थी ये क्लाइंट के साथ, आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई है और आपकी अभी नेक्स्ट मीटिंग कब की प्लान है. और जैसे कि आप नीचे हिस्ट्री पैनल में देख सकते हो कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक मीटिंग जनरेट कर दी है जिसमें सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसका सब्जेक्ट लाइन कैप्चर कर लिया है, ये कौन से क्लाइंट के साथ रिलेटेड है वो क्लाइंट से रिलेट कर दिया है, अभी उसका स्टेटस क्या है, कौन से RM को ये असाइन है. जो भी क्लाइंट ये RM हैंडल कर रहा है उसको ही ये मीटिंग असाइन हो गई है. ओके. सो यहाँ पे अभी तक हमने ये देखा कि कितनी हम सिस्टम थ्रू कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं एंड वो कैसे हमें दिखेगा. अभी नेक्स्ट मेरा आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये तो हुआ कि हम सिस्टम से कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको, बट मेरा RM इसके ऊपर फॉलो अप कैसे लेगा, उसको कंप्लीट मार्क कैसे करेगा, बाकी की चीजें अपडेट कैसे करेंगे. सो डोंट वरी, जस्ट आपको सिंपली डैश
यहाँ पे आपको मीटिंग का एक टाइल दिख रहा होगा, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट। अभी यहाँ पे मुझे ओवरऑल मीटिंग्स दिख रही है जो मैं ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स के साथ शेड्यूल करती हूँ, जो नॉर्मल मीटिंग्स होती है। अभी मुझे देखना है कि मेरी पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स कितनी है जो आज के दिन में प्लान है और मुझे कंप्लीट करनी है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द पोर्टफोलियो रिव्यू टाइप एंड यहाँ पे मुझे एक एनालिसिस मिल जाता है कि कितनी ऐसी मेरी मीटिंग्स है जो ओवरड्यू हो गई है, कितनी ऐसी मेरी मीटिंग्स है जो आज के दिन में प्लान है, कितनी कल के दिन में प्लान है और कितनी अपकमिंग मीटिंग मेरी है। ठीक है, सो आई विल जस्ट ओपन वन रिकॉर्ड एंड आई विल क्लोज इट। ओके, सो आज के दिन में जो प्लान है मैं उसको ओपन कर लूंगी। अब इसमें से जो फर्स्ट मीटिंग है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। आई विल जस्ट एडिट दिस मीटिंग। अब ये क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं यहाँ से इसको कंप्लीट मार्क कर दूंगी एंड जो भी डिस्कशन क्लाइंट के साथ हुआ मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देती हूँ कि क्लाइंट ने मुझे एसआईपी का न्यू प्लान अपडेट करने बोला है, न्यू प्लान उनसे शेयर करने बोला है एंड उनका जो एड्रेस है वो चेंज करने बोला। सो आई विल जस्ट कमेंट इट एंड आई विल अपडेट द मीटिंग। सो यहाँ पे जो भी मैंने कमेंट्स किए वो अपडेट हो गए। अब मैं ये फैमिली पे जा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कमेंट्स आप मीटिंग में कर रहे हो ये फैमिली पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो आपको एक ओवरऑल हिस्ट्री मिलती है कि अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई है उसमें क्या क्लाइंट के साथ क्या डिस्कशन हुआ था। आप मीटिंग डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे एक एनालिसिस मिलेगा कि आपकी ये क्लाइंट्स के साथ मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी, फर्स्ट मीटिंग कब आपने प्लान की थी, लास्ट मीटिंग कब थी एंड नेक्स्ट मीटिंग आपकी कब की है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक मीटिंग जनरेट कर दी है। एज आप देख सकते हो कि मेरा मीटिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली था, तो यहाँ पे उसने ईयरली बेसिस पे एक नेक्स्ट मीटिंग ऑटो जनरेट करके दे दिया। आप अगर यहाँ पे शो कंप्लीटेड पे मार्क करते हो, यहाँ पे आपको ओवरऑल हिस्ट्री मिलेगी कि अभी तक ये क्लाइंट्स के साथ कितनी पोर्टफोलियो कितनी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग हुई है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा कि सिस्टम में मैं कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग अपडेट कर सकती हूँ, कैसे मेरा आरएम उसके ऊपर फॉलो अप करके वो मीटिंग्स कंप्लीट कर सकता है बिना वो फॉलो अप भूले, ये अभी तक हमने देखा। अब नेक्स्ट ये चीज रहेगी कि जो भी आरएम, जो भी टीम लेवल पे या फिर जो भी टीएल लेवल पे या फिर जो भी बॉस लेवल पे पर्संस है, वो इससे एनालिसिस क्या निकालेंगे या फिर इससे उनको बेनिफिट क्या होगा। उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितनी ऐसी पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स अभी तक मैंने क्लाइंट्स के साथ शेड्यूल ही नहीं की, कितनी मेरे आरएम शेड्यूल कर रहे हैं बट वो अभी ओवरड्यूज में है, या फिर मेरे आरएम का परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। तो ये सारी जो एनालिसिस है मुझे रिपोर्ट से मिलेगी। सो आई विल जस्ट गो टू द रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में प्री डिफाइंड क्रिएट करके रखी है। सो वी विल गो वन बाय वन। सो मैं फर्स्ट रिपोर्ट ओपन कर लेती हूँ जिससे मुझे ये पता चलता है कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जिसके साथ मेरा रिव्यू मीटिंग अभी तक हुआ ही नहीं है, मैंने अभी तक वो प्लान ही नहीं किया। सो यहाँ पे मुझे दो चीजें पता चलती है, एक कि ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसके साथ मैंने ना अभी तक उनका फैमिली कैटेगराइजेशन किया है, ना उनके साथ फर्स्ट मीटिंग मेरी शेड्यूल की है। ठीक है, एंड मुझे सेकंड चीज ये पता चलती है कि कितने ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके साथ अभी तक मैंने फर्स्ट मीटिंग सिस्टम थ्रू ऑटोमेट नहीं करवाया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे मिडिल क्लास के एक क्लाइंट है जिनका रेवेन्यू जिनका एयूएम क्या है, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी फर्स्ट मीटिंग मिसिंग है। वैसे ही आप सुपर एचएनआई क्लाइंट्स के लिए देख सकते हो कि कितने ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो सुपर एचएनआई क्लाइंट्स हैं बट उनके साथ अभी तक मैंने फर्स्ट मीटिंग मेरी शेड्यूल नहीं की या फिर सिस्टम से वो मैंने ऑटो जनरेट मीटिंग जनरेट नहीं करवाई। सो फर्स्ट रिपोर्ट से मुझे ये पता चलता है, सो इंस्टेड ऑफ क्लाइंट आपको रिच आउट करे और बोले कि आप हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग कर लो, आप खुद क्लाइंट को बताइए कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करना है।
नेक्स्ट रिपोर्ट से मुझे ये पता चलेगा कि कितनी मेरी ऐसी मीटिंग्स है जो अपकमिंग डेज में या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान है. सो इफ अगर मेरे आरएम को कुछ शेड्यूल करना है तो उस बेसिस पे वो अपने शेड्यूल प्लान कर ले. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिटेल्स मिल रही है कि कौन से क्लाइंट के मेरी मीटिंग्स जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान है, उसको कौन सा आरएम हैंडल कर रहा है, वो कौन से कैटेगरी के क्लाइंट है, उनका एयूएम क्या है और वो फर्स्ट मीटिंग कब के लिए शेड्यूल है. अब ये रिपोर्ट मुझे अगर आरएम वाइज देखना है तो आई विल जस्ट ड्रैग इट. तो मुझे यहाँ पे आरएम वाइज पता चलेगा कि हर्षिता बिरारी की कितनी मीटिंग शेड्यूल है और वो कौन से क्लाइंट्स के साथ शेड्यूल है जो नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्लान है और वो कौन से क्लाइंट्स है. जैसे आप जैसे देख सकते हो कि हया कालिया के भी 3 मीटिंग्स प्लान है जो नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान है और वो कौन से क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं. सेम मेबल मैथ्यू के भी आप देख सकते हो कि एक क्लाइंट का नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान है. तो ये रिपोर्ट में आपको ये पता चलता है कि मेरे आरएम्स अगर कोई शेड्यूल उनका बिजी है तो ये रिपोर्ट्स अपना अपना खुद का एनालिसिस करके वो अपना शेड्यूल वैसे मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट मेरा जो रिपोर्ट है वो मुझे ये बताता है कि कितने ऐसे मेरे सुपर एचएनआई क्लाइंट्स हैं जिसके साथ मेरा अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग मैंने शेड्यूल ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज ये मेरे सुपर एचएनआई क्लाइंट्स हैं जो मुझे हर टाइम मोस्ट ऑफ द बिजनेस देते हैं या फिर आगे जाके भी ये मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस देंगे. तो अगर मैं इनसे ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा तो हो सकता है कि ये क्लाइंट मेरे से मिस आउट हो जाए या फिर जल्दी ही ये क्लाइंट किसी और के पास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा दे बिकॉज उसको उतना कनेक्टेड फील नहीं हो रहा. सो यहाँ पे मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चलती है. इफ आपको ये आरएम वाइज देखना है तो आप वापस आरएम को ड्रैग कर लीजिए. यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि मेरे कौन सा आरएम कितने मेरे सुपर एचएनआई क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है, उनका एयूएम क्या है और उनकी फर्स्ट मीटिंग शेड्यूल नहीं है. तो एज अ बॉस अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हो तो आप ये आरएम्स को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये क्लाइंट्स का आपका पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग अभी तक हुआ नहीं है और ये मेरे सुपर एचएनआई क्लाइंट्स है, तो प्लीज वैसा शेड्यूल आप कर लीजिए. नेक्स्ट रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है कि कितनी ऐसी पोर्टफोलियो मीटिंग्स है जो शेड्यूल तो हुई है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जो मेरी ओवरड्यू पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग है. अब ओवरड्यू मतलब जो मेरा प्लान था बट वो अभी तक मैंने सिस्टम में कंप्लीट नहीं किया या फिर कंप्लीट कर दिया है बट वो सिस्टम में मैंने अपडेट नहीं किया. तो यहाँ पे मुझे फैमिली कैटेगरी वाइज पता चलता है कि मेरे एचएनआई क्लाइंट्स की कितनी ऐसी मीटिंग्स है जो ओवरड्यू में है, जो अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी बट नहीं है, और वो फैमिली का कैटेगराइजेशन क्या है, कौन सा मेरा आरएम उसको हैंडल कर रहा है, वो क्लाइंट कौन है. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि मेबल मैथ्यू 5 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं और वो सारे मिडिल क्लास क्लाइंट्स हैं और उनका अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग नहीं हुआ है. तो हम वैसे आरएम को बता सकते हैं कि आप प्लीज ये अपना शेड्यूल वैसे प्रॉपर कर लीजिए. नेक्स्ट जो है वो मेरा आरएम परफॉर्मेंस रिपोर्ट है. ये रिपोर्ट से मुझे ये पता चलता है कि अभी तक मेरे कौन से आरएम्स है जिन्होंने पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स की है, कौन से क्लाइंट से उन्होंने कनेक्ट किया है, कौन से क्लाइंट्स वो हैंडल कर रहे हैं, वो सुपर एचएनआई क्लाइंट्स है, एचएनआई क्लाइंट्स है, अपर मिडिल क्लाइंट्स है या मिडिल क्लाइंट्स है. ठीक है, और वो स्टेटस वाइज पता चलता है कि वो आरएम की जितनी भी मीटिंग शेड्यूल है वो क्लोज्ड है, अभी असाइन में है या इन प्रोसेस है. जैसे मैं मेबल मैथ्यू का एक एग्जांपल देती हूँ. यहाँ पे मुझे उनकी 4 मीटिंग्स दिख रही है जिसमें से 4 ओवरऑल 5 मीटिंग्स दिख रही है जिसमें से 4 असाइन है. वो कौन से क्लाइंट्स है मुझे वो भी दिख रहा है, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी दिख रहा है, और यहाँ पे उसका स्टेटस भी पता चल रहा है, एंड नेक्स्ट उनकी कितनी कंप्लीटेड मीटिंग्स है. सो मुझे आरएम वाइज यहाँ पे एक प्रॉपर एनालिसिस मिलता है कि कौन से मेरे आरएम्स की कितनी मीटिंग्स हुई है और अभी उसका स्टेटस क्या है. सो आई होप ये रिपोर्टिंग पार्ट भी आपको क्लियर होगा. और अभी तक हमने जो देखा कि कैसे सिस्टम से मैं मेरी पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स है वो ऑटो शेड्यूल करवा सकती हूँ, कैसे मेरे आरएम्स उसके ऊपर फॉलो अप करके वो मीटिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे मुझे उसका एनालिसिस मिलेगा एज अ बॉस और एज अ टीएल. ये तो हुई कि सिस्टम आपको क्या करके दे सकता है. अब हमने हमारे बहुत सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से डिस्कस किया था एंड उनके भी कुछ फीडबैक्स आए थे कि पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स तो हम कर रहे हैं बट
उसका आउटकम जो मेजर करना है, लेट्स से कि मैं कोई क्लाइंट्स के साथ पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करने जा रहा हूँ, सो अगर वो क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे एसआईपी न्यू परचेस करना है, या फिर मेरा एसआईपी बढ़ा दो, या फिर कुछ टास्क दे दिया जैसे मेरा बैंक चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, तो ये मैं मैनेज कैसे करूँ, या ये चीजें मैं मेजर कैसे करूँ कि पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग थ्रू मेरा बिजनेस कितना आया, एडिशनल कितना बिजनेस आ रहा है, या फिर कितना मेरा टास्क आ रहा है मेरे आरएम के रिलेटेड। तो इसके लिए हमारी टीम से यशा मैम आपको इसके ऊपर डिटेल एक डेमो एंड डिस्कशन करेंगे हम इसके ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये क्लियर है। सो ओवर टू यू यशा मैम। थैंक यू हर्षदा। जैसे हर्षदा ने एक्सप्लेन किया कि अपने पास अभी मीटिंग करने का और उसको फिनिश करने का तरीका है, बट अभी कैसा होता है कि वो मीटिंग करने के बाद मेरा आउटकम क्या आया, तो या तो फिर मुझे लीड बनाना है या फिर मुझे कुछ नया टास्क परफॉर्म करना है, वो मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो अभी वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाके वो रिकॉर्ड बना के फिर उसको मीटिंग को वहां पे लिंक करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा काम हो जाता है। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं हम लोग, और जो अभी हमारे अंडर प्लानिंग में है, तो वही मैं आपको जितना भी हमारा डिजाइन रेडी हुआ है, जो हमने ब्लूप्रिंट रेडी किया है, वो आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये अपना सिंपल जो मीटिंग का क्रिएशन पेज आ रहा है वही है, और यहाँ पे आपको ये स्टेटस वाला फील्ड दिख रहा है। अगर मैंने स्टेटस में कंप्लीटेड मार्क किया, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे अभी मेरा डिस्कशन खत्म हुआ है और मैं कंप्लीशन पे आ रही हूँ। तो जैसे मैंने कंप्लीट मार्क करा है, मुझे नीचे ये 3 ऑप्शंस दिखेंगे कि ये जो मीटिंग का आउटकम है, मतलब कि जो डिस्कशन हुआ, उसके बाद मुझे आगे नेक्स्ट क्या क्रिएट करना है। हो सकता है मुझे डिस्कशन के दौरान ऐसा क्लाइंट ने बताया कि हाँ, मैं म्यूचुअल फंड आपके साथ कर रहा हूँ, अभी मुझे इंश्योरेंस भी स्टार्ट करना है। तो वो केस में मेरे पास नया लीड आ गया, ठीक है। एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्कशन के दौरान ऐसा पता चला कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं, तो वो मेरे लिए बैक ऑफिस का कुछ टास्क आ गया, तो वो केस में मैंने न्यू टास्क पे क्रिएट किया। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि वो न्यू लीड मिला और उससे उस पर मुझे इमीडिएटली काम स्टार्ट करना है, तो वो केस में मैं दोनों एक साथ बना दूं, तो वो भी अपने पास ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, फिर अभी हम लोग लीड का देखते हैं। जैसे मैंने लीड सिलेक्ट किया और मैं सेव बटन पे क्लिक कर रही हूँ, तो एक ड्रॉर जैसा आएगा अपने पास, और अभी यहाँ पे जितनी भी फील्ड लग रही है, वो हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमें जो लग रही है कि मिनिमल फील्ड रिक्वायर्ड है, इतनी फील्ड हमने रखी है। ये आगे जाके वो चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी ये अंडर प्लानिंग में है ये पूरा फीचर, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे ये सारी फील्ड्स फिल अप कर दी, तो आपको फिर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट लीड का। जैसे ये बटन पे क्लिक करोगे, आपका लीड क्रिएट हो जाएगा, एज वेल एज मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और ये पर्टिकुलर मीटिंग के साथ वो लीड आपकी अटैच हो जाएगी। तो ये जो भी कुछ जाके वो पूरा काम करना था ना, तो वो एक ही स्क्रीन में 2 ही क्लिक में खत्म हो गया। सेम एज टास्क के लिए भी है, टास्क पे क्लिक करोगे, सेव बटन पे क्लिक करोगे, तो टास्क के रिलेटेड जितनी मिनिमल फील्ड है जो रिक्वायर्ड है हमारे हिसाब से, जो हमने अभी यहाँ पे रखी है, तो वो फिलअप करोगे, बटन पे क्लिक करोगे, टास्क क्रिएट होगा और वो मीटिंग के साथ अटैच हो जाएगा। अगर ऐसा है कि मैंने बोथ सिलेक्ट किया है और मैं सेव बटन पे क्लिक कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा कि वो एक ही फॉर्म में आपको लीड और टास्क दोनों का इंफॉर्मेशन फिल करने का देगा, और बटन पे क्लिक करोगे तो दोनों मॉड्यूल्स के डेटा सेव भी हो जाएंगे, मीटिंग के साथ अटैच भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसा हमने रिसर्च करा है, जितना हमने सोचा है, उसके हिसाब से हमने इतना डिजाइन करा है। तो ये आपको अर्ली स्टेज में इसीलिए प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका फीडबैक चाहिए, सजेशन हमको मिले तो इसको और बेटर बना सके और कितना इजी कर सके, इसीलिए आपको अभी दिखा रहे हैं। सो इतना मेरी तरफ से है। थैंक यू। Thank you, Yasha ma'am. So we are really excited for this upcoming feature. Also, I just wanted to inform you all that we are planning a webinar in collaboration with Vijaya FinTech, and it is going to happen on 13th February at 4 p.m. to 4:30 p.m. to 6 p.m. So this in Vijaya FinTech, the speaker will be Rahul sir. He is the product head, and he'll be there. So they, as of now, they have 4 products
One is there are two products, platform related products for MFTs, and then they have two other products that are AI related. So if you people are interested to join it, I'll be putting the link in the chat here, so you can register for the same. Haya, you can continue. Thank you, Mabel. So this was the complete demo of the portfolio review feature. So you have seen here कि कैसे आप अपना portfolio review का one time setup कर सकते हैं. आफ्टर द सेटअप आपके आरएम्स डैशबोर्ड के थ्रू ही कैसे उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स कंडक्ट करके उसके जो भी पॉइंट्स या एक्शनेबल आइटम्स है वो आप सीआरएम में ला सकते हैं, एंड नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग्स भी अकॉर्डिंगली आपके ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाती है. आफ्टर देन वी हैव ऑल्सो सीन सम रिपोर्ट्स जिससे आपको ये रिव्यू परफॉर्मेंस, आरएम वाइज परफॉर्मेंस क्या होता है वो आप देख सकते हैं. आरएम अपना परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि इस मंथ में आरएम ने कितनी मीटिंग्स कंप्लीट की, कितने उनकी मीटिंग्स है जो कि पेंडिंग है, कितनी है जो कि अपकमिंग है. सो एक प्रॉपर एनालिसिस भी आपको रिपोर्ट से मिलता है. और हमारा जो अपकमिंग फीचर है, दिस इज जस्ट एन एनहांसमेंट ऑफ दिस पोर्टफोलियो रिव्यू फीचर, जहां से आप इसके एक्शनेबल आइटम्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि यशा मैम ने आपको दिखाया कि लीड क्रिएट करनी है या टास्क क्रिएट करना है, या इन सम केसेस आप दोनों क्रिएट कर सकते हैं. सो उसके बाद आप ये रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि फॉर द पर्टिकुलर पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स के क्या आउटकम्स आए थे. So with this, we have come to the end of the demo. Now I would love to hear from you all. If you have any questions, use cases or specific scenarios in the mind, please feel free to share with us. I'm Ridu. I'm Ridu from Guwahati. I'm an MFD. If you can show me how to onboard the client and how does all the client look like on the CRM? I mean, how does the dashboard look like? Like मैं सुबह उठ के जब CRM, I mean, I switch on my computer, so definitely I would go to the CRM. वो मेरा दिन का पूरा शेड्यूल दिखा देगा. कैन यू प्लीज शो मी दैट? Yes, sir. Mabel, can you show the dashboard? यस सर. सीआरएम में आप डेटा जो है आपके इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से यहाँ पे लेके आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट वेल यूज कर रहे हैं, जो भी पीएमएस है, वो डेटा आपका संचय सीआरएम में आ जाएगा. देयर आर टू मॉड्यूल्स, क्लाइंट्स एंड फैमिलीज. फैमिली मॉड्यूल में आपके सारे फैमिली हेड मैनेज होंगे, और आपके जो फैमिलीज के मेंबर्स है इंक्लूडिंग विद दैट फैमिली हेड, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके क्लाइंट्स मॉड्यूल में आ जाएंगे. सो क्लाइंट और फैमिली मॉड्यूल में आपके जो म्यूचुअल फंड्स के जो भी डेटा है वो वहाँ पे मैनेज होगा. वहाँ पे आपके क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल्स, उनकी बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एवरीथिंग यू कैन मैनेज ओवर दैट. वहीं से आप उनको विश भी कर सकते हैं, वो विश को आप ऑटोमेट भी करवा सकते हैं. और ऑनबोर्डिंग अगर आपका इन्वेस्टवेल है या फिर आप इंटीग्रेशन लेते हैं, तो वो आपको देयर आर टू वेज, आप मैन्युअल भी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एपीआई के थ्रू भी यहाँ पर एवरीडे आप ला सकते हैं. और डैशबोर्ड पे आपको जो व्यू दिखता है वो आपको मेबल अभी शो करेंगे, वहां पे आप क्लियरली देख भी सकते हैं. Sir, would it be possible for you to share your contact number in the chat? So we can connect one-on-one and we'll be giving you a live demo for the entire system. How long will the live demo go? So it won't go for more than 15 to 20 minutes. Okay. Yes, so we can like schedule according to your availability. There is one question from the Sachin sir. Do you integrate with the InvestWell and approach charges for the API? So currently sir, आप InvestWell से जो हमने currently ये enhancement लाया है from the bringing data from the InvestWell, and currently we are not charging for it. Sir, any more questions? Is there meeting option linked to Zoom or Gmeet linked to this CRM to auto send the link or share the link via email? Also is mail sent from CRM or separately? Okay sir, Zoom लिंक का अभी तो सर अवेलेबिलिटी नहीं है, बट अगर हम गूगल कैलेंडर इंटीग्रेशन सीआरएम में लाने वाले हैं, वो अभी रोल आउट नहीं हुआ है. वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी मीटिंग्स आप शेड्यूल करेंगे, तो लाइक आपका जो गूगल कैलेंडर है जहाँ पे आप अभी मीटिंग डालते हैं और क्लाइंट को भी ईमेल जाता है, सिमिलरली इट विल वर्क फ्रॉम द सीआरएम से ही आप वहाँ पे मीटिंग्स क्रिएट कर देंगे और क्लाइंट्स को आपके वो ईमेल चला जाएगा.
Yeah, Kartikeya sir, just dropped your number details over here. Also, I request my team to share our sales details of Nearby so that they can connect with them. You can also book the demo from our website, sir. And we are also providing you the details of our salesperson so that you can contact him. Yes, sir. We are also having an integration with the advisors coach. And for the further details, we'll request you to connect one-to-one. CRM cost currently and the renewals. Sir, we are having two things, the subscription cost and the onboarding cost. Our onboarding cost is for the one time and our subscription cost is per user. ऑनबोर्डिंग कोस्ट सर आपको सिर्फ वन टाइम देना रहेगा एंड जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका ईयर पर ईयर आपको देना रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन द यूजर्स yes Madhu sir, we will definitely contact you for the demo. Pankaj sir, we can connect with for this to discuss the integration of IFA now. We have shared the details of our Sanchay CRM product head Nirbhay Patel. Please find the details from the chat. Yes, sir. Krishna, sir, we are also having the insurance management, even with the claim management. You can manage your insurance data over here. And our team will show you the demo for the same. Sir, our cost analysis is also available on our website. I request our team to give the link of our website as well. Sir, website पे आपको पूरी details मिल जाएगी regarding the onboarding cost and also from the user cost. Yes, sir. For the WhatsApp, we are having our product that is Sandesh chatbot. So Sandesh के through आप WhatsApp integration करवा सकते हैं with Sanjay CRM. And for that also, you can also book the demo from our team. No, sir. Register, that is a user per user cost. Also, we have given our Sandesh website as well. Any more questions? I would also love to hear the feedbacks from you all. How you feel about our portfolio review feature and the enhancement which Yasha ma'am shows you. आपके feedback आप आपको unmute करके भी share कर सकते हैं. Regarding this webinar also, you can share your feedback. Thank you, Sachin sir. Okay, Madhu sir. Actually, the webinar started by 4:30. But thank you so much for giving your participation. Sure, Madhu sir, we will share the demo. We have also shared our contact details. You can also share your contact details as well, so our team will reach out to you for the demo. Thank you so much, Brijesh sir. Yes, sir. We are having the onboarding cost of 35,000, but you can still connect with our sales team for the further clarification. Much, Vijay sir. So if there is no more questions, then I would like to share just a quick update about our upcoming webinar. This webinar will be about growth secret for the solo MFDs. हमारे कितने MFDs हैं जिन्होंने just start किया है? They are the single users जो अकेले अभी सब कुछ manage करते हैं. So we have get many times the request for giving our Sanchay CRM for the solo MFDs as well. So we are going to launch this for those MFDs who want to start and grow big. जो अपनी सिंगल यूजर से स्टार्ट करना चाहते हैं एंड देन उनकी जैसे टीम बिल्ड होती है वैसे ही वो अपने CRM को भी एनहेंस करना चाहते हैं. So we are launching that for our all users, those who are the solo MFDs. It will be on the 11th February or by 4:30 p.m. In the chat, you will get the registration link for the same. Also, our team will reach out to you and provide you the registration details via WhatsApp and call as well.
So with this, we have come to the end part. So thank you so much, everyone, for your valuable time and giving your participation. I request my team to provide the link for the Solo MFD event. You will get the registration link in the chat right now as well. आप अभी ही register कर सकते हैं. Those who are the Solo MFDs, and if you are not Solo MFDs and still want to see the things over there and our launching event of that, so you can also join. We would love to see you all in our upcoming webinar, and I hope you all will join there too. Okay, then we'll meet in our upcoming webinar. आप सबके घर पे स्वादिष्ट भोजन तैयार है, so उसका आनंद लीजिए, and we'll meet in our next webinar. Thank you so much once again. Have a great day ahead. Thank you everyone. तो बोलोगे 1 मिनट बात करनी है। Thank you everyone. Yes, sir. Yes sir. मैम से पूछो एक मिनट। हेलो मैम। Yes sir. मैम एक क्वेश्चन था। सुबह 6:40 पे ग्रुप में डाला। Yes, sir, बताइए। सर ने संजीव सर ने मॉर्निंग में वो करा था, व्हाट्सएप करा था ग्रुप में 6:40 के आसपास। हर्षदा मैम से। हेलो। या हर्षदा। हेलो मैम संजीव सर ने एक ग्रुप पे मैसेज डाला था मैम, हाँ। उसका थोड़ा सा मुझे आंसर थोड़ा सा आपसे चाहिए, हाँ कैसे हाँ करेंगे? सर, मैं आपको अभी जस्ट ये मीटिंग के बाद कनेक्ट करती हूँ, हम 1-to-1 डिस्कस कर लेते ठीक है मैम। हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। जो लिखने का बोल रहे हैं ना, मैं अभी नाराज हो रहा हूँ ना, इनको भी बुरा लग रहा हूँ। ठीक है। क्लाइंट फोन कर रहा है। Okay, thank you everyone. So we'll be closing with this session. Thank you everyone for joining.